Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start the new topic, the first topic of analytical technique, that is NMR. Nuclear magnetic resonance spectroscopy. Basically, please keep quiet. As the name indicates, nuclear magnetic resonance, and specifically I'm going to explain hydrogen NMR या प्रोटॉन NMR. मैं जब भी हाइड्रोजन बोलूं या प्रोटॉन बोलूं, that is one and the same thing. Proton is also equal to hydrogen atom. लिख लें आप, प्रोटॉन यहां पर एक टर्म यूज करते हैं प्रोटॉन. Proton is hydrogen atom. So proton mean hydrogen atom in organic chemistry, in organic molecule. NMR, nuclear magnetic resonance. Basically, what we are going to do with this atom, we are going to resonate its nuclear magnet. Is nuclear magnet or the magnet of the nucleus, you can say. I'm going to tell you, please. NMR, nuclear magnetic resonance. I am going to explain it later on, that how we resonate the magnet of a nucleus. First of all, let me introduce you the basic terminology. Number one, there is a belief, there is a theory, a hypothesis that subatomic particles are spinning continuously in an atom. What are the subatomic particles? Proton, neutron, electron. Correct? Protons, electron and neutron, these all are said to be known as subatomic particles, and they are continuously spinning 24/7 inside the atom. ये बात अब आपने दिमाग में रखनी है, सोचो. Spinning mean they are rotating around its own axis. जैसे एक अर्थ जो है, it is spinning around it. Do you know why an earth is going to generate a magnet around it? And earth has two poles, south and north, due to its spinning. Exactly. So all subatomic particles are spinning, and all are generating tiny magnetic field in their own vicinity, in their own domain, proximity, वगैरह. Here are, once again, there are some points. Number one, spinning of the nucleons. Proton and neutron both are spinning in a nucleus. Protons is also spinning, neutron is also spinning, and they both are living inside the nucleus. Individual spinning होती है. Proton has opposite spin in the nucleus, as the electron have their own orbitals in opposite spin in the orbital. सुनिए, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जहां पर हों, एक की डायरेक्शन अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, वो उसी डायरेक्शन को बेसिकली स्पिनिंग भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन एक ऊपर स्पिन कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है. वहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है, आई मीन even two electrons sitting in the same orbital, they are also generating tiny magnetic field, but in opposite directions.
Same is the case, same is the phenomena over here. I mean saw in one book that there is proper alignment of proton and neutron opposite to each other. यानी कि एक प्रोटॉन और अगर एक न्यूट्रॉन है तो एक दूसरे की अपोजिट स्पिनिंग कर रहे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका बन रहा है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं. यस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट. सो protons have the opposite spin in the nucleus as compared to the spin of neutron, as it was seen in the in case of when electrons were sitting in the same orbital. Next thing, that is why odd number nucleon have overall or residual spin, but even number nucleon cancel out their spin. एक एटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, दोनों स्पिनिंग कर रहे हैं. यस इट इज ट्रू. दोनों एक छोटा टाइनी मैग्नेटिक जनरेट कर रहे हैं. यस इट इज ट्रू. बट द डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेट विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, सो दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच मैग्नेट. अगर मैग्नेटिक फील्ड फिर हाइड्रोजन क्या करती है? तो बता, अगर किसी के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, देयर इज नो न्यूट्रॉन, नो कैंसलेशन, उसका टाइनी मैग्नेटिक होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैंसल आउट नहीं होगा. इसलिए ऑड न्यूक्लियन जिसके पास टोटल, जिनका न्यूक्लियन नंबर, व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3, वो भी कैंसल आउट नहीं होगा. अगर न्यूक्लियन नंबर 4 है तो वो कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को. 5 है तो कैंसल आउट नहीं होगा. सो जस्ट ऑड नंबर न्यूक्लियॉन्स और ऑड न्यूक्लियाइज, जो भी हो टोटल, आपस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जो मिक्सचर है या जो कॉम्बिनेशन है, दे आर प्लेसिंग देमसेल्फ इन अपोजिट डायरेक्शन. प्रोटॉन प्लस सारे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 6 जितने भी है, वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं विद इन द न्यूक्लियस. बेसिकली वो एक दूसरे के स्पिन को कैंसल आउट कर देते हैं अगर वो सेम नंबर के हैं. अगर वो सेम नंबर के नहीं है तो फिर उनके मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जा सकता है, फिर रियलाइज किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं. एंड आई मीन दे आर हैविंग ओवरऑल आर रेजिडुअल स्पिन उसको बोलते हैं. उनकी कोई ना कोई स्पिन रेजिडुअल स्पिन होगी, ओवरऑल स्पिन कैंसल आउट नहीं होगी. रेजिडुअल स्पिन की वजह से, एज आई टोल्ड यू, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एंड यू नो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसकी एक डायरेक्शन होती है और उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है. गॉट इट? ओके. पॉइंट नंबर 4, all nucleons have same energy but have different or random direction of their magnetic field under normal condition. एक और हाइपोथेसिस है कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है अगर वो एक ही न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं. 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी न्यूक्लियॉन्स मीन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. बट उनकी इनिशियली नॉर्मली जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? रैंडम होती है. बेसिकली कोई स्पेसिफिक एक्सिस के ऊपर नहीं होती है. हमें काम उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन है. पॉइंट नंबर 5, हम उस एटम को उठा के बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, यानी उस एटम के बाहर एक मैग्नेट लगा देते हैं. ये कंडीशन देखिए, लेट्स सपोज किसी भी एटम के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 4 हैं. कोई भी एटम जनरली देखें तो इनकी डायरेक्शन क्या है? रैंडम है, और लेकिन इनकी दे आर लाइंग ऑन द सेम एनर्जी लेवल.
एनर्जी सेम है, डायरेक्शन रैंडम, एनर्जी सेम। जब आप बाहर से कोई मैग्नेट रख देंगे इसके ऊपर, आपने सर्कुलर मैग्नेट देखे होंगे कभी, शायद एमआरआई मशीन देखी है कभी, उसके अंदर वही सेम मैग्नेट लगा होता है। अगर आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी, जैसे आपने डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग देखी थी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, उनको स्प्लिट कर देगी, उनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, एनर्जी दो हिस्सों में स्प्लिट कर जाएगी, और उनकी डायरेक्शन भी सिर्फ टू टाइप की होगी। कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगे, लाइक दिस ग्रीन लाइन, कुछ पॉपुलेशन एंटी पैरेलल हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड के। वहां तो रैंडम डायरेक्शन है ना, हमने उसके बाहर एक मैग्नेट लगा दिया जी। एक्सटर्नल फील्ड की जो बेसिकली डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, वो ये है। इनमें से कुछ पॉपुलेशन की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की सेम है ना। इनमें से एक ऐसा है, वैसे शायद चौथा लिखना मैं भूल गया हूं या गलती हो गई है, यहां पे फोर्थ भी होना चाहिए। बुढ़ा होगा तेरा बाप, फिल्म की बात बता रहा हूं। लेट्स सपोज 4 3 + 1 4 है। अब देखिए, दो किस्म की पॉपुलेशन है, दो एनर्जी लेवल एंड 2 डायरेक्शंस। पहले क्या थी? रैंडम डायरेक्शन, सेम एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल्स, 2 डायरेक्शन। एग्जैक्टली। आप लोगों ने कभी, आपने तो मम्मी डैडी लोग हैं वैसे, आपने कभी स्विमिंग की है दरिया के, रिवर में? आप कभी दरिया के अगेंस्ट स्विमिंग किए? आई मीन मैं जो पूछना चाह रहा हूं, पानी आ रहा हो, बह रहा हो, आपने किए कभी? अच्छा नहीं, सुने 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 मेरी बात सुने यार, ओ याजूज माजूज, सुनो मुझे। जब दरिया चल रहा हो तो उसमें कुछ नहीं होता। खैर मेरी बात सुने, अगर एक बच्चा, एक बंदा विद इन द लेयर्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर स्विमिंग कर रहा है, और एक तकरीबन उसी का क्लास फेलो, सेम मैथ्स का बच्चा उसके अगेंस्ट स्विमिंग कर रहा है, किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? जो अपोजिट कर रहा है। सबसे मुश्किल काम रिवर के अपोजिट स्विमिंग करना है। और याद रखें, अगर आप में से कोई स्विमिंग कर सकता है या कर रहा है, स्विमिंग वो एक्सरसाइज है कहीं पर भी जो आपके बॉडी के तमाम मसल सुपर फिट करती है। क्यों हमें डूब जाए, पागल हो गया? मैं आपको बाद में बताऊंगा स्विमिंग के बारे में, अभी हम इधर आते। मैं तो स्विमिंग कर नहीं सकता हूं, स्विमिंग से ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं। स्विमिंग बॉडी का एक एक मसल उसको रिशेप और स्ट्रेंथन करती है। प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई यहां पर, और क्या हुआ? एनर्जी लेवल 2 हो गए हैं और डायरेक्शन भी 2 हो गई। अब देखें, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है दैट इज कि पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड माइनॉरिटी इज अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहां पर एक एक्ट करते हैं, एक और काम करते हैं। हम बाहर से रेडियो फ्रीक्वेंसी पास करते हैं, शावर करते हैं, उस सैंपल में फेंकते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं। किन की एनर्जी लो है, पैरेलल की या एंटी पैरेलल की? पैरेलल की। अगर आप बाहर से
रेडिएशन फेंक रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की रेडिएशन फेंकी जाती हैं, वो प्रोवोक करती हैं जो पैरेलल हैं कि उठो इनके मुखालिफ हो जाओ, एनर्जी लो। अब इनमें से 1 2 3 जो भी हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे, जंप करेंगे, इनके अपोनेंट कैंप में चले जाएंगे। दे आर गोइंग टू एब्सॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएशन। खास रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा हाइड्रोजन, खास रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा कार्बन 13। तो हाई एनर्जी पे जाने के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ऑब्वियसली यहां से एक कम और यहां पे आ जाएगा। हमें वही वेवलेंथ चाहिए होती है जो एब्सॉर्ब हुई है। दैट वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ दैट हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन की ये वेवलेंथ डिफरेंट होती है। डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन से? नो 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 नो, नॉट ड्यूट्रियम, दैट इज इनएक्टिव हाइड्रोजन, वो जिसका एक मैस 1 हो। नॉट ट्रिटियम एक्टिव हो सकता है। मैं आपको बताता हूं। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, सिमिलरली एक ये हाइड्रोजन है। ये चारों हाइड्रोजन डिफरेंट हैं। ये चारों सैंपल में हैं चारों हाइड्रोजन, लेकिन ये डिफरेंट एनर्जी एब्सॉर्ब करके फिर अपने आप को रेजोनेट करेंगे, फ्लिप करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट इजीएस्ट वर्जन है ये एनएमआर के बेसिक प्रिंसिपल का। तो जो रेडिएशन आपने शॉवर की है, क्योंकि आप इसको एनर्जी दे रहे हैं ना, इन दोनों पॉपुलेशन में से कौन सा लेवल की पॉपुलेशन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी? नंबर 1 जो लोअर पे है। हाई वाला तो पहले ही। आप इनका पूछ रहे हैं? नो, इनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नॉर्मल कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आगे बहुत सारे रोले हैं। बताएंगे आप, सही टेंशन ना लें। गॉट इट? सो बेसिकली मैं लेट मी अनडू इट वंस अगेन। फ्यूचर आ गया। Let's suppose there were originally 3 and I'm passing UV light, and there is the transition of electron from low energy to high energy state. Spinning of nucleons, स्पिन करते हैं प्रोटॉन और अपोजिट स्पिन करते हैं प्रोटॉन्स, और आपस में प्रोटॉन्स हो या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो, दे आर स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और न्यूक्लियाई के पास रेजिडुअल स्पिन होती है। इवन न्यूक्लियाई में रेजिडुअल स्पिन नहीं होती, उनके ऊपर एनएमआर के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। रेजिडुअल स्पिन अगर किसी मैग्नेटिक किसी न्यूक्लियस के ऊपर है तो उसका कोई ना कोई छोटा सा टाइनी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक्सटर्नल फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो स्प्लिट कर देते हैं 2 एनर्जी स्टेट में उसको और 2 डायरेक्शन में। Then radio frequency radiation are showered to flip the state or resonate the tiny magnetic field of the nucleons or the nucleus. Different nuclei absorb different radiation or they show their presence. ये 6 मेजर मेन पॉइंट हैं